Good morning, students. So as we are discussing chapter number 5 of class 10th, that is arithmetic progression. In this chapter we were solving exercise 5.2 in the previous video. In this video we will continue exercise with question number 12. So question number 12 is two APs have the same common difference. The difference between their hundredth terms is 100. What is the difference between their thousandth terms? Okay, so there are two APs and common difference of both the APs are same. जो कॉमन डिफरेंस है टू APs का वो कैसा है, सेम है. जो डिफरेंस है उनके 100th टर्म के बीच में, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 100. सो हमको फाइंड आउट करना है कि जो उनके 1000 टर्म्स के बीच में डिफरेंस होगा वो कितना होगा. ओके, सो here APs are not given, so we can assume let the first AP be equals to A1, A2, A3 dash dash dash. Okay, let the second AP be equals to B1, B2, B3, B4 dash dash dash. Okay, now here we can see the first term of first AP is A1 and the first term of the second AP is B1. Okay, and here let the common difference of both the APs be equals to D. It is given in the question that common difference of both the APs are same, so that is equals to D. हमने क्या मान लिया उसको, D मान लिया. ओके, now for the first AP, okay, so we know that an equals to a plus n minus 1 multiplied by t. Okay, or here you can write a equals to a1 and common difference is d equals to d. Okay, a हमारा क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल्स टू a1. सो 100th टर्म इसकी क्या हो जाएगी, a100 इज इक्वल्स टू a1, फर्स्ट टर्म इज a1 प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d. सो a100 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 99d. ओके, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में से, तो 99 इज रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाई d, दैट इज 99d. ओके, now we can also calculate 1000 term. So a 1000 is equals to a1, first term is a1 plus 1000 minus 1 multiply by d. A 1000 equals to a1 plus 999 d. Okay, so in the first AP I have calculated that a100 equals to a1 plus 99d and a1000 equals to a1 plus 999d. Okay, now for the second AP. For the second AP, first term equals to p1. Okay, सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज इक्वल्स टू b1 एंड कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर बोथ द APs, दैट इज इक्वल्स टू d. वी हैव सपोज दैट इज d. नाउ सेम a n
इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, सो हम यहाँ पे क्या माना, हमने ये बी माना है। ओके, तो वी कैन राइट बी 100 इज इक्वल्स टू B1 प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। सी, यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत हो ना, ये मैंने जनरल फार्मूला लिखा है ए एन। ओके, यहाँ पे आप ये फार्मूला लिख के आप ये भी लिख सकते हैं बी एन इज इक्वल्स टू बी प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, both the formulas are same. Okay, so B100 equals to, first term is B1 plus 100 minus 1 multiplied by D. So B100 is equals to B1 plus 100 minus 1 multiplied by D. B100 is equals to B1 plus 99D. Okay, now we can also calculate 1000 term of second AP, that is B1 plus 1000 minus 1 multiply by D. So B1000 is equals to B1 plus 999D. Okay, now in the question it is given that difference between their 100 terms is 100. Okay, so we can write, so difference between their 100th term. Okay, so A100 माइनस B100 इक्वल्स टू 100. ओके, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्ट करना है, कितना है, वैल्यू 100 है। सो मैंने फर्स्ट एपी में सेकंड एपी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट एपी मेरी कितनी है, A1 प्लस 99D। ओके, एंड सेकंड एपी जो 100 टर्म थी उसकी क्या थी, दैट इज B1 प्लस 99D। B1 प्लस B1 plus 99D equals to 100. Okay, so A1 plus 99D, A1 plus 99D minus B1 minus 99D equals to 100. ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट के, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस 99D से माइनस 99D कैंसिल हो गया। सो A1 माइनस B1 इक्वल्स टू 100. ओके, let us suppose this is equation 1. Okay, but we have to calculate what is the difference between their 1000th term. Then the difference between their thousands terms equals to, so A1000 minus B1000. Okay, this is equals to, A1000 is equals to A1 plus 999D minus B1000 equals to B1 plus 999D. यहाँ हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा. ओके, अगेन A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D प्लस 999D से माइनस 999D कैंसिल हो गए. सो A1 माइनस B1, क्या रिमेनिंग बचा ये, A1 माइनस B1, बट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट A1 माइनस B1 इज इक्वल्स टू 100. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1. So A1 minus B1 equals to 100. It means A1000 minus B1000 is also
इक्वल्स टू 100. ओके, सो उनके 1000 टर्म्स के डिफरेंस क्या होंगे, दैट इज इक्वल्स टू 100. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 of exercise 5.2. How many 3 digits numbers are divisible by 7? ओके, सो हमको ये पता करना है, मीन्स हमको n निकालना है. ओके, कि 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द AP और वी हैव टू फॉर्म AP. सो पहले हम AP बनाएंगे, उसके बाद ही हम पता करेंगे कि कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट्स के 7 से डिविजिबल हैं. सो हाउ कैन वी गेट द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज हैविंग 3 डिजिट्स एंड डिविजिबल बाई 7. ओके, सो एज वी नो दैट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100. So divide 100 by 7. 7 बन जा 7. Now 3 is remaining. Okay. 7 4 जा 28. Now 2 is remaining. Okay. See, here remainder is 2. R is 2. So if I add 5 in 2, so it becomes 7. अगर मैं इसमें 5 ऐड करूँगा 2 में, तो कितना हो जाएगा 7. और अगर यहाँ रिमाइंडर में 7 होगा, सो मैं भी इसको 1 बाई डिवाइड और कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा रिमाइंडर 0. इट मीन्स अगर मैं 100 में 5 ऐड कर दूँ, तो कितना हो जाएगा 105. देन आई गेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज हैविंग 3 डिजिट्स एंड डिविजिबल बाई 7. ओके, सो आपको यहाँ पे 5 ऐड कर देना, मीन्स रिमाइंडर में जितना आ रहा है. ओके, और डिवाइजर को कंप्लीट करने के लिए जितने की आवश्यकता है, यू शुड ऐड दैट नंबर. ओके, सो फर्स्ट नंबर इज 105. so largest 3 digit number that is 999. now divide it by 7. so 7 बन जा 7. 2 is remaining. Okay, now 7 4 जा 28. 1 is remaining. Okay, 7 2 जा 14. 5 is remaining. See, here we subtract 5 from 999. अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हम ऐड क्यों नहीं कर रहे. सी, इफ़ आई ऐड 2, ठीक है, मैं यहाँ 2 ऐड कर दूंगा, सो रिमाइंडर नहीं बचेगा. तो मैं अगर यहाँ भी 2 ऐड करूँगा, तो ये जो 3 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर है 4 डिजिट का हो जाएगा. ओके, लेकिन इसने क्या कहा है 3 डिजिट्स का होना चाहिए. सो अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 999 से, देन इट इज ऑल्सो 3 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाई 7 ऑल्सो. अब आप कहेंगे यहाँ पर हमने 2 सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया 100 में. तो अगर 100 में 2 सब्ट्रैक्ट करते तो 98 बचता, और 98 जो है वो आपका 2 डिजिट का नंबर. ओके, सो 999 माइनस 5, सो 994. ओके, ये आपको कैलकुलेशन क्वेश्चन में करने की आवश्यकता नहीं है. ओके, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन AP ओनली. स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 digits number divisible by 7 equals to 105 and 994 respectively. Okay, then the AP is equals to 105. Okay,
सेकंड नंबर क्या आएगा, 7 इसमें ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1 1 2, थर्ड नंबर इज 1 1 9 एंड लास्ट नंबर इज 9 9 4. ओके, सी यहाँ पे हम 7 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का, 7 का है. 7 की टेबल आएगी हर एक में. सो डी कितना है यहाँ पे, 7 है. ओके, सो ए इक्वल्स टू 105, डी इक्वल्स टू 7, ए एन इज द लास्ट टर्म. ओके, ए एन इक्वल्स टू 994. ओके, we have to calculate n. Now we know that an is equals to a plus n minus 1 multiply by d. Just put the values. An is 994, a is 105 plus n minus 1 multiply by d, that is equals to 7. 1994 minus 105 is equals to n minus 1 multiply by 7. Okay, now subtract. This is equals to 8 8 9 is equals to n minus 1 multiply by 7. 8 8 9 upon 7 equals to n minus 7. इधर मल्टीप्लाई में, इसलिए इधर डिवाइड में चला गया. ओके, नाउ डिवाइड 8 8 9 बाई 7. So 1 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 and 7 7 जा 49. Okay, so 127 is equals to n minus 1 and n equals to 127 plus 1. It means n is equals to 128. Okay, so how many numbers, that is equals to 127. So here we can write there are 128 3 digits numbers divisible by 7. Okay, so we will start with question number 15. For what value of n are the nth terms of two APs 63, 65, 67 dash 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 and 3, 10, 17 dash 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 equal? Okay, so here we have to calculate n. किस तरह से कि दोनों APs का, there are two APs, दोनों APs का जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल हो. ओके, सो द फर्स्ट AP is equals to 63, 65, 67. Okay, here A is equals to 63 and D is equals to 65 minus 63, that is equals to 2. Okay, or here an is equals to a plus n minus 1 multiply by d. ओके, यहाँ पे मैंने n कैलकुलेट किया, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d. सो a n इज इक्वल्स टू a 63 प्लस n माइनस 1, d इज 2. ओके, so let us suppose this is our first equation. Okay, for the second AP, so second AP is 3, 10, 17. Okay, here A is equals to 3 and D is equals to 10 minus 3, that is equals to 7. D यहाँ पर कितना है, 7 है.
और a यहाँ पे कितना है 3 है। सो हेयर ऑल्सो यहाँ पे हमने an माना, तो यहाँ पे हम bn मान सकते हैं। ओके, या आप an भी मान लेंगे, सो भी क्वेश्चन गलत नहीं है। सो a bn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। ओके, सो bn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 3 n माइनस 1 multiply by d is 7. So this is our second equation. So क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों की nth टर्म कैसी है, इक्वल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, इक्वल। तो फर्स्ट AP की nth टर्म कितनी है हमारी 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, एंड सेकेंड AB की nth टर्म क्या है, वो हमने क्या मानी है bn जो है वो इसकी nth टर्म है 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, सो now according to the question, an is equals to bn. An is 63 plus n minus 1 multiply by 2, and bn is 3 plus n minus 1 multiply by 7. Okay, now this is 63 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ओके, यहाँ से मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर ओनली। जब n से मल्टीप्लाई करूँगा 7 हो जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 7 हो जाएगा। ओके, सो 63 माइनस 2 दैट इज 61 प्लस 2n, and 3 minus 7 that is minus 4 is remaining। नेगेटिव ज़्यादा है इसलिए माइनस 4 बचेंगे। ओके, सो टेक माइनस 4 फ्रॉम RHS टू LHS। सो 61 माइनस के अंदर आके प्लस के हो जाएंगे, 61 प्लस 4, एंड टेक माइनस 2n फ्रॉम LHS टू RHS। सो 7n माइनस 2n, ये प्लस के अंदर जाके माइनस के हो जाएंगे। ओके, 65 is equals to 7n minus 2n, so 5n is remaining। so 65 upon 5 equals to n। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है 5n के साथ, जाके डिवाइड में हो जाएगा। 5 बन जा 5 and 5 3 जा 15। so we got value of n that is equals to 13। ओके, तो 13th टर्म होंगी दोनों APs की, जिनका जो टर्म होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। there is a AP whose third term is equal to 16। थर्ड टर्म कितनी है 16 है, एंड सेवन्थ टर्म जो है वो है फिफ्थ टर्म से 12 अधिक। मीन्स फिफ्थ टर्म में अगर मैं 12 ऐड कर दूं सो आई विल गेट सेवन्थ टर्म। सो वी डोंट नो व्हाट इज द AP, सो वी कैन सपोज लेट द फर्स्ट टर्म बी A and the common difference be D of the AP। ओके, AP का जो मैंने फर्स्ट टर्म है वो मैंने मान लिया A एंड कॉमन डिफरेंस D। Now according to the question, okay, so A3 is equals to 16। थर्ड टर्म कितनी है 16 है, एंड A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D इज इक्वल्स टू 16। A प्लस 2D is equals to 16। let us suppose this is our first equation। in the second scenario
it is saying seventh term is equals to 12 larger than its fifth term. मीन सेवन्थ टर्म कितनी इक्वल किसके बराबर हो जाएगी, a5 प्लस 12 के. ओके, सो आई कैन राइट a7 in this way also, a plus 7 minus 1 multiply by d. Okay, it is the formula of calculating nth term of an AP, and a5 equals to a plus 5 minus 1 multiply by d plus 12. a5 को मैंने a plus 5 minus 1 multiply by d और plus 12 लिख दिया. ये होगा मेरा a plus 7 minus 1 6 multiply by d 6d. here a plus 4 minus 1 sorry 5 minus 1 4d plus 12. okay, now take a and 4d from RHS to LHS. so a plus 6d minus a minus 4d both has positive sign in RHS, so they will go with negative sign. okay, equals to 12. so a is cancelled by a, and 6d minus 4d equals to 2d equals to 12, and d is equals to 12 upon 2. 2 6 ja 12, so d is equals to 6. okay, d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे 6, and I have another equation also, a plus 2d is equals to 16. so we can calculate a with the help of this equation by putting d equals to 6 in equation 1. अगर मैं equation 1 में d equals to 6 पुट कर दूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, एंड a और d अगर मेरे पास होंगे तो मैं कोई भी AP फॉर्म कर सकता हूँ. सो ऑन पुटिंग d equals to 6 in equation 1. okay, so a plus 2 multiply by 6 is equals to 16, and a plus 12 6 2 ja 12 equals to 16, that is equals to a plus a equals to 16 minus 12, and 16 minus 12 equals to 4. so a is equals to 4. okay, so a मेरे पास यहाँ पे 4 है and d मेरे पास कितना है 6 है. now I can easily form AP. then the AP is equals to 4 में d ऐड करूँगा, सेकेंड टर्म आ जाएगी. d कितना है 6, 4 प्लस 6 10, फिर d ऐड करूँगा सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म आ जाएगी. क्योंकि मैंने आपको बताया भी था हर एक प्रीसीडिंग टर्म में d ऐड करने पे हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाती है 16. ओके, एंड 22 डैश डैश. सो दिस इज आवर AP. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3, 8, 13 डैश 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 253. सो लास्ट से 20th टर्म पूछिए. सो व्हेन आई गेव द इंट्रोडक्शन of arithmetic progression, in that time I told you about how can we calculate 20th term, or we can say nth term from the last of any AP. okay, so मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के हम यहाँ पे यूज करेंगे और इजीली लास्ट से किस तरह से कोई भी टर्म फाइंड आउट करते हैं वो इस क्वेश्चन से यहाँ पे सीखेंगे. ओके, फर्स्ट टर्म से कैसे करते हैं वो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं. नाउ सो दिस इज nth टर्म एंड दिस इज ऑल्सो लास्ट टर्म. मैंने क्या कहा था, अगर nth टर्म ही लास्ट टर्म है उस AP की तो वो क्या हो जाती है, an इक्वल्स टू l हो जाता है. सो हेयर गिवन दैट a is equals to 3, first term is 3, d is equals to 8 minus 3, it means d is equals to 5. okay, and l is equals to 253. l for last term, l is equals to last term. okay, so 20th term
from the last is equals to, here I am writing the formula, L minus n minus 1 multiplied by D. Okay, so now put the values. L is equals to 253 minus n is equals to 20 minus 1 and D is equals to 5. Okay, 253 minus 19, 20 minus 1, 19 multiplied by 5. Okay, so this is equal to 253 and 19 5 ja 95. Okay, and 253 minus 95, that is equals to 158. Okay, so 20th term from the last, that is equals to 158. Okay.